Okay, hi everyone, welcome to my YouTube channel. So it's a lovely day, lovely afternoon. Actually, it looks like evening, but the weather has been just awesome from the time I arrived in Pimpri. And when I was traveling from Mumbai to Pimpri also yesterday, so we halted at Kamshe, this location after the ghat, basically after the ghat ends, when we descend that time. So but it looks so freezing. I mean, not exactly freezing, but it was pretty nice and chilled out that I could not differentiate the temperature between the inside of the car and outside of the car. Actually, inside also being on the number one, also it was pretty cool and amazing, and outside also it was pretty nice. Any which ways, I'm heading to Colombo for a program, for a show which I'm gonna host, and this was like a last minute inquiry which I received, and thankfully I was carrying my options, which I always do. You know, it's my I would say a habit. Wherever I'm traveling, I always keep extra clothes and extra basically event clothes basically with me, so that whenever I get last minute inquiries also I'm able to attend to them. Any which ways, this vlog I'm making because I think while on the way to Kolhapur, as I'm going to come across something nice, something good, something, you know, worthwhile talking, so I will definitely connect you to that. And yes, hopefully this is going to be an amazing and beautiful journey, so stay tuned. So we've now reached the Khed Shivapur toll plaza. Yes, okay. एक second. Alright, so you can see right now we have reached Khed Shivapur toll plaza. This is the first toll plaza actually where we're crossing. Alright, so we have actually crossed the toll naka of that Khed Shivapur toll naka, and उसके पहले से ही, थोड़ी देर पहले से ही वहाँ पे थोड़ी बारिश एक्चुअली शुरू हो चुकी थी, और बारिश हो रही है. तो आप मुझे बताइए कि आपको बारिश में ट्रैवल करना पसंद है या फिर नहीं पसंद है. वेल, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई डोंट लाइक मीडियम डेंसिटी ऑफ रेनफॉल, बिकॉज मीडियम डेंसिटी रेनफॉल के साथ में आपको ड्राइव करते हुए या फिर कार से ट्रैवल करते हुए ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है बेसिकली. लेकिन अगर हैवी रेनफॉल हो तो फिर थोड़ा विजिबिलिटी की इश्यूज़ हो जाती है, पोर्ट हाउस वगैरह नहीं दिखते हैं, या फिर वही चीज़ें हो जाती है बेसिकली, या फिर कई दफ़े जो है ट्रैफिक जैम्स भी हो जाता है. दैट इज़ बिकॉज लॉट ऑफ places you might have some kind of waterlogging etc. Any which ways, मुझे तो ऐसा लगता है कि बारिश में अगर मतलब आप आउटडोर इस तरीके से जा रहे हैं, आउट स्टेशन जा रहे हैं, तो मतलब मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, बढ़िया हो जाता है. और आप एक्चुअली देख रहे हो, देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा. दैट इज़ बिकॉज रेन ड्रॉप्स इस पर गिरी हुई है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू जस्ट फॉलो अ वेरी good driving etiquette basically during rainfall, and apart from that also, I do not really think or see that anywhere there is going to be a problem for you to actually travel during monsoon. अगर देखेंगे तो हर तरफ इतनी खूबसूरती, अगर आप इसमें से देखें, मतलब ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जितनी भी है. आगे मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और बैक कैमरे से थोड़ा और आपको चीज़ें दिखाऊँ. आई एम एक्चुअली गोना शो इट यू दैट ब्यूटीफुल नेचर, and rainfall is just a blessing to actually travel. Alright, so the journey has been going really well. हम जो खेड है उसके थोड़ा सा आगे आए तो वहाँ से बारिश बंद हो गई. एक्चुअली खेड में ही बारिश चल रही थी. उसके बाद में जैसे हम आगे विज़िट करते गए, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये जो रास्ता है पूरा का पूरा जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से लेके कोल्हापुर का, सो देयर आर टू एग्जिट्स बेसिकली. वन एग्जिट इज़ फॉर पंढरपुर एंड द अदर एग्जिट इज़ फॉर महाबलेश्वर. पंढरपुर ऑफ कोर्स ये नाम आपने सुना होगा हिस्ट्री में. ये एक बहुत मायने रखता है, बिकॉज पंढरपुर में काफ़ी ऐसी हिस्टोरिक चीज़ें हुई हैं पास्ट में. अगर आप हिस्ट्री की बुक्स
में विजिट करेंगे फिर से, या फिर अगर आप गूगल आउट भी कर लेंगे पंढरपुर के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि पंढरपुर में क्या क्या हुआ है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ बेसिकली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ऑफ कोर्स महाबलेश्वर इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं घूमने के फिरने के लिए और राइट चिल करने के लिए। तो ये तो जो एग्जिट्स हैं यहाँ पे ये रूट पे आपको मिल रहा है, और NH4 का जो रोड है बेसिकली NH4 हाईवे है उस पे हम चल रहे हैं, और मैं बाकी की भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। राइट, टेक केयर। ओके, सो हाय, we've just taken a small break out here, so we've just stopped at this place which is होटल पारगढ़ बेसिकली। और आप देख रहे हैं कि यार मेरे आसपास हर जगह पे इतनी सारी खूबसूरती है। बारिश आ रही है तो मैं एक्चुअली ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप देखिए इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। एंड मैं जस्ट शेड पे जाना पड़ेगा बिकॉज बारिश आ रही है, फ़ोन भीग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, बट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। जस्ट लुक अराउंड मी, जस्ट लुक अराउंड मी। हाँ, यहाँ पे रह के एक्चुअली बात कर सकता हूँ मैं। वाह। सो ये होटल का थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनाया, देखिए एक्सटीरियर जब डेकोरेटेड वेरी नाइसली ब्यूटीफुल। और देखिए ना, इसका चेहरा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज एक्चुअली आई एम अगेंस्ट द सनलाइट। यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरे से बताऊँगा कि आसपास का लोकेशन क्या है। एक्चुअली देखा जाए ना तो कभी कभी रोड ट्रैवल बड़ा खूबसूरत हो जाता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू ट्रैवल एट द राइट टाइम एट द राइट लोकेशन। नो, नॉट राइट लोकेशन, बेसिकली राइट टाइम एंड एन्जॉय।